claims. We're moving on right now. The Shiv Sena is, as we speak, protesting outside. Sorry, this is not the Shiv Sena. That's a different story. The Samajwadi Party and their MLAs are protesting outside the Uttar Pradesh Assembly as we speak. We're going to show you the visuals very shortly. This is from inside the Uttar Pradesh Assembly. But the protests we're talking about have been going on for a few minutes now. 4 करोड़ संदर्भों से 3.93 करोड़ से अधिक का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करा गया है। अमृतकाल के प्रथम वर्ष में भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता किया जाना सौभाग्य है। इसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाली 200 से अधिक बैठकों में से 11 बैठकों का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए G20 सम्मेलन की बैठक की मेजबानी प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे, संस्कृति और विरासत को वैश्विक समुदाय के सम्मुख प्रदर्शित करने का एक एवं व्यापक अवसर होगा। भारत के विकास का इंजन उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8% से अधिक का योगदान करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाए जाने का संकल्प किया गया है। इसके दृष्टिगत वर्ष 2022-27 की अवधि में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मेरी सरकार नियोजित है। सरकार ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत 600 से अधिक सुधार लागू किए हैं। सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को 400 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है। निवेशकों के सहायता MOU पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन निवेशक प्रबंधन पोर्टल निवेश सारथी विकसित किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अच्छी वर्ष श्रेणी में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट माह फरवरी 2018 में आयोजित किया था, जिसमें प्राप्त निवेश के प्रस्तावों को 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन के साथ जमीन पर उतारते हुए लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है तथा अधिकांश इकाइयों में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के समग्र विकास हेतु यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 में भागीदारी के लिए विभिन्न देशों से संपर्क किया गया तथा निवेश प्रोत्साहन हेतु विभिन्न देशों के 21 शहरों तथा देश के प्रमुख नगरों मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़ आदि में रोड शो आयोजित करके प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित किया गया। Netherlands, Denmark, Singapore, Japan, Dakshin Korea, Australia. Let's go over to our UP Bureau Chief Pranshu Mishra. Pranshu Mishra, I believe that's the UP Governor Anandiben Patel attempting to address the audiences over calls from the Samajwadi Party inside the Assembly. Can you tell us more? Yes, that's right. In fact, the Governor Anandiben Patel is at the moment addressing the joint session of both the houses, Legislative Assembly and Legislative Council. Of course, the Samajwadi Party primarily and also the RLD is raising a lot of din in the house. There is a lot of pandemonium in the house. Slogans are being raised that Governor, go back. The Yogi government is a failed government, and this protest is going on inside the house. But even despite that very strong opposition in UP Assembly, remember, Samajwadi itself has around 111 MLAs, so it's a strong opposition this time around. But Governor Anandiben Patel, despite all that strong opposition, lot of sloganeering by the opposition, is continuing to go through the governor's address. So clearly the governor is trying to make out a point, the government is trying to make out a point that it is unfazed as far as the opposition is concerned. And the governor's speech is clearly hailing the achievements that have been made by the Yogi government over the past 1 year. The fact that, several investment proposals have come forward to the state of Uttar Pradesh, to the GIS, how various global partners have joined on board the Vikas story or the growth story of Uttar Pradesh. Opposition on its part is saying that, all these are fabricated truths. There is no reality in it, and therefore the governor, instead of reading what they say, the bundle of lies, should actually go back and listen to the opposition, and therefore this heavy sloganeering is continuing inside the assembly at this point in time. Pranchu, just stay with us for a second. Just stay with us. We're going to dip in once again. We'll let the audiences hear what's taking place. प्रदेश में
निर्गत जीएसटी पंजीयन की कुल संख्या 28.03 लाख हो गई है, जो कि देश में सर्वाधिक है। मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष में 2022-23 में प्रदेश में अब तक 26.29 करोड़ मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। महिलाओं के प्रति अपराध एवं बाल अपराध संबंधी गंभीर मुकदमों हेतु विशेष न्यायालय में विशेष लोकपालों की नियुक्ति करके प्रभावी पहल सुनिश्चित की जा रही है, जिससे महिलाओं के प्रति अपराध में 59.1% सजा की दर प्राप्त की गई है, जो कि देश में सर्वाधिक एवं राष्ट्रीय औसत के 2 गुने से भी अधिक है। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है, जिसका देश के सकल दुग्ध उत्पादन में योगदान लगभग 7% है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गन्ना, आलू, सब्जियों, फलों एवं एथेनॉल के उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 52.77 लाख आवास स्वीकृत हुए तथा गरीबों के लिए आवास बनाने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि इनमें से 39.66 लाख आवास पूर्ण भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास निर्माण की संख्या एवं ग्रामीण आवास निर्माण की पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य सुधारों को जन सामान्य विशेषकर समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचने के उद्देश्य से मेरी सरकार 2 फरवरी 2020 से प्रत्येक प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले आयोजित कर रही है। इस प्रकार की पहल करने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य है। अब तक कुल 83 मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले आयोजित हुए, जिनमें कुल 11.69 करोड़ रोगी लाभान्वित हुए तथा 2 लाख से ज्यादा गंभीर रोगियों को उच्च केंद्रों पर संदर्भित किया गया है। वर्ष 2018 में इकोसिस्टम इंडिया एसएम फोरम द्वारा MSME के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2018 में राष्ट्रीय काम सेतु अवार्ड प्राप्त किया गया है। वर्ष 2018 में वंश ऑफ सेंटर लखनऊ को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एसोचैम नई दिल्ली द्वारा प्रदेश को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट की गोल्ड मेडल प्रदान की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 सर्वाधिक फीडबैक पेज अवार्ड पेयजल स्वच्छता मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 2004-19 में दिव्यांगजन के हितार्थ कार्य हेतु लखनऊ को सर्वश्रेष्ठ जनपद पुरस्कार प्रदान किया गया। सहकारिता विभाग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। ग्राम्य विकास विभाग को कन्वेंटर्स में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।